Hello everyone. Once again, we are here with a tutorial on motivation and its impact and implications on consumer behavior. Of course, the first thing that we need to understand is what is motivation. It is an inner force which reflects the goal directed arousal. Now, to make it more clear, we can take an example. एक सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि there is someone named A and he is fond of mobile handsets and he keeps on searching for them. And there is another situation in which Mr. B, who has one handset and that is also not performing well. So, in both the cases, there is certain motive for purchase of a mobile phone. In the first case, it is just a part of habit, and in the second case it has a strong motive because the existing product is not performing well. So motive क्या होता है? मोटिव वो इनर स्टेट है जो आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी को इतना एनर्जाइज करेगा कि वो आपको मोटिवेशन की तरफ ले जाए और आप वो एक्शन ले सकें जो कि मार्केटर आपसे करवाना चाहता है. ऑफ कोर्स मार्केटर आपसे चाहता है कि आप प्रोडक्ट को परचेज करें. उस परचेज तक पहुंचाने के लिए आपका मोटिव बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मोटिव क्या है? वो इनर अर्ज नहीं है तब भी क्रिएट की जाती है थ्रू प्रमोशंस, और अर्ज है तो द हाफ बैटल इज़ वन. एज आई सेड, मिस्टर बी हैज़ already got a phone but it is not performing well. It means half the battle is done. परचेज करना ही है. प्रॉब्लम हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एंड द मोटिव इज स्ट्रॉन्ग. I go to a shop and just look at the mobile handsets for the information purpose and keep them. Motive is not strong. यही इनर स्टेट, यही इनर अर्ज जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी जो बॉडी होती है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिवली एनर्जाइज होके उस दिशा में चल देती है, उस डायरेक्शन में चल देती है दैट द परचेज इज़ टू बी मेड. मेंटली एंड फिजिकली बोथ वेज यू जस्ट थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ये जो आपका सोच बन रहा है, दिस इज समथिंग दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मोटिव. मोटिव जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपकी इनर अर्ज स्ट्रॉन्ग होगी एक्शन लेने के लिए. और यहाँ हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं? हियर वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ परचेज. सो व्हाट इज मोटिव? द इनर स्टेट which is taking you, which is directing you in a selective fashion towards goal which is usually there in the external environment. Here we are talking of a purchase of a product. The goal is of course that product which is there in the external environment. उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको डायरेक्ट करने का काम मोटिव का होता है. ये जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आप मोटिवेटेड फील करते हैं टूवर्ड्स द परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट. Motives have different roles. 4 basic roles that we'll be talking of are: it defines the basic strivings. Basic strivings can be: you're purchasing something for the purpose of safety. This is one of your basic striving. Or you have thought of that you want to show your achievement to others. This is the basic striving. That is, as I said, there are few people with low resources. They only purchase the particular products which are actually useful to them. But for some, status and achievements are also basic strivings जिनको एग्जिबिट करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट परचेज़ किया जाते हैं, या मार्केट में जो गोल होता है वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज़ किया जाता है क्योंकि आई वॉन्ट टू satisfy my basic striving of showing achievement and status to the different people in the society. So roles of motives की जहाँ तक बात होती है तो एक मोटिव का रोल यही है कि वो आपको बेसिक स्ट्राइविंग्स या वो स्टेट जो कंज्यूमर्स को अचीव करना है वो बताने में हेल्पफुल होता है. सेकेंड इज आइडेंटिफाइज द गोल ऑब्जेक्ट्स, the products and the services by which you can satisfy your motives. Of course जब आपकी क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन आप मार्केट में ढूंढेंगे. You have a problem
you will have find a solution to that. तो whatever kind of problem has been created, उसका जो solution होगा वो ढूंढने में motive आपकी help करता है. Motivational push influences consumers to identify product as goal objectives. और ये आपको push कहाँ से मिलता है? ये motivational push आपको मिलता है through the promotions and advertising campaigns. एज आई सेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम परचेज़ तभी करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, you go and buy a deodorant from a shop. You start using that deodorant, and after few days, maybe a week or so, you find another deodorant because you saw a wonderful ad on the TV. So you are attracted towards it. The motive is created and you go to the shop and buy that product. So what happened? स्ट्राइविंग क्रिएट किया मोटिव ने, गोल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराया आपसे. चॉइस क्राइटेरिया को आपके इन्फ्लुएंस करता है. इट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस क्राइटेरिया. मोटिव ऑल्सो गाइड्स कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग प्रोडक्ट्स. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं कार की. जब आप कार ख़रीदते हैं तो दे कैन बी डिफरेंट मोटिव्स, मैनी मोटिव्स लाइक कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट, स्पीड कंट्रोल, स्टाइलिंग, माइलेज. एक ही गाड़ी को ख़रीदने के मोटिव डिफरेंट हो सकते हैं. किसी के लिए कन्वीनियंस एक मोटिव हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक मोटिव हो सकता है, किसी के लिए स्पीड एक मोटिव हो सकता है, और किसी के लिए स्टाइल मोटिव हो सकता है, और किसी के लिए माइलेज मोटिव हो सकता है. दैट इज़ द रीज़न वाई मारुति ऑल्टो इज़ ऑल्सो देयर इन द मार्केट and people also buy Fortuner. The point is that according to the motives of buying the product, for someone who doesn't have resources, the car is only for the purpose of moving, for the purpose of transport, for the purpose of convenience. But for people who have ample money, who have 3, 4, 5 cars, for them the choice criteria is just the status. So motives are guiding the consumers कि किस तरीके से प्रोडक्ट को इवेलुएट करें. अगर मेरा मोटिव सोसाइटी है, मेरा मोटिव स्टेटस है, तो ऑफ कोर्स मेरा क्राइटेरिया ऑफ चॉइस डिफरेंट होगा. फोर्थ पॉइंट that we'll be discussing is deciding other influences. Motives affect the determinants of perception, learning, personality and how people process information. अगर मुझे अपना मोटिव क्लियर है तो मेरा अपना सोचने का तरीका, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिसका ऐसा कोई मोटिव नहीं होगा. As I said, I have to purchase a mobile phone. So whatever ads I will be seeing, whatever internet I'll be going through, whatever information I'll be going through, my process of processing that information will be certainly different other than those जिनका ऐसा कोई motive या कोई दिमाग में सीन ही नहीं है कि मोबाइल परचेज भी करना है. When we talk of motivation, we talk of motive combinations as well as motive conflicts. First of all, we'll take motive combinations. There can be two kind of motive combinations. One is motive linking and the other is motive bundling. Motive linking, as motives can differ in how specific they are, it is a possibility of linking to occur at various stages like safety and ड्यूरेबिलिटी. यानी कि किसी एक ही चीज़ की परचेज में दो मोटिव लिंकअप कर जाते हैं. वो प्रोडक्ट सेफ़ है और ड्यूरेबल है, सेफ़ है या नहीं, ड्यूरेबल है या नहीं. किसी एक भी मोटिव की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती है तो परचेज प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है. मोटिव बंडलिंग का मतलब है जब आप एक ही प्रोडक्ट से डिफरेंट मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हैं. जैसे एक ऑटोमोबाइल परचेज में एक ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेसिक प्रोडक्ट दैट द कार और द automobile is offering you, but it is bundled with different motives of achievement, social recognition and safety etc. अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में आपसे बात की थी कि कुछ लोग परचेजेस इसलिए करते हैं कि दे हैव टू क्रिएट अ स्टेटस सिंबल. सो इन दैट केस ट्रांसपोर्ट जो कि बेसिक मोटिव है प्रोडक्ट के परचेज का, इसके अलावा देर आर सो मैनी मोटिव्स दैट बंडल अलॉन्ग विच इफेक्ट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट. दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव कॉम्बिनेशंस. Now we'll talk of the motive conflicts. Conflict समझते हैं आप. Conflict वो सिचुएशन है जब दो पार्टीज़ में कंसेंसस नहीं बन पाता है. कॉन्फ्लिक्ट जब हम मोटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब दो मोटिव्स
जो अप्रॉक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, और उनमें से चूज़ करना प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन से मोटिव को पहले मीट आउट किया जाए. 3 principal cases that are possible are approach avoidance, approach, avoidance. We'll take them one by one. The first one is approach conflict. You can see on the slide, it is the conflict which occurs when two desirable alternatives are there. Decision is confusion because both the choices are desirable to the consumer. तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के ही मोटिव्स क्लियर हैं. कंज्यूमर को मोटिव क्लियर है कि आई हैव सम मनी, और ये भी मेरा एक प्राइमरी मोटिव है कि मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है, और दूसरी तरफ आई एम फिटनेस कॉन्शियस एंड आई नीड टू बाय दैट मशीन. दोनों ही केसेस में मुझे एक साथ अगर चूज़ करना है तो मैं क्या करूँ. कॉन्फ्लिक्ट अनस्टेबल होता है, और इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने में जो हेल्प करती है, और उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम ये डिसाइड करने में अपनी मदद कर पाते हैं कि इस समय कौन सी चीज़ नीड ऑफ द आवर है और मुझे पहले परचेज करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन सर्च में हो सकता है मुझे पता चले कि लैपटॉप्स पे बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, तो आई विल सर्टनली रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड आई विल परचेज द लैपटॉप फर्स्ट एंड विल see to the purchase of that machine later onwards, right? So this is how we can resolve our approach conflict. The next conflict is avoidance conflict. The situation occurs जब consumers के पास दो alternatives होते हैं, दोनों ही negative in nature हैं. Avoid करने का मतलब ही negativity है. Avoid कर रहे हैं आप, दोनों ही जो आपके पास options हैं उनको avoid करना चाह रहे हैं, negative of nature. Example, TV set ख़राब है और दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो रिपेयर बिल हो जाएगा या रिप्लेसमेंट. अब रिपेयर बिल भी अगर 8,000 या 9,000 रुपये का है, कुछ ऐसा पार्ट ख़राब हो गया है, और नया टीवी भी जो है वो आपको लगता है अगर 18-20 हज़ार में आता है, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं, दोनों ही सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दोनों ही सिचुएशंस में काफ़ी खर्चा होने वाला है. ये स्टेबल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इन नेचर, और अगेन इसका एक ही ऑप्शन है, यू विल बी गोइंग फॉर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑफन स्टॉप शॉर्ट ऑफ परचेज कमिटमेंट, राइट. इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए, और अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको ये पता चलता है कि इट वुड बी ग्रेट थिंग इफ़ यू परचेज, सपोज आपका टीवी अभी आपने सही कराया फिर कोई और ख़राबी हो गई, कितना पुराना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डीलर या टेक्नीशियन से सर्च करने के बाद आप अपना इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मूव टूवर्ड्स ईदर द परचेज और द रिपेयर. देन द नेक्स्ट वन इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ये तब होता है जब मेकिंग डिसीजन ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. व्हाट डज इट मीन? मीन्स example is like you want to acquire a car, or consumers may hesitate because of scarcity of sizable amount of money that is required to purchase a car. यहाँ क्या है कि प्लस भी है और माइनस भी है. प्लस ये है कि कंज्यूमर चाहता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करे, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी है कि एकदम से इतना हेफ्टी खर्चा ही कैन नॉट मैनेज. सो व्हाट इज़ टू बी डन? अब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मार्केटर्स के पास कुछ स्ट्रैटेजीज एंड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक अगर मैं आपसे बात करूं वो है आपका ये जो हम ऑफ़र करते हैं इंस्टॉलमेंट्स स्कीम. ये जनरली क्यों किया जाता है? इसी तरीके के अवॉइडेंस को अप्रोच में बदलने के लिए किया जाता है. आप परचेज़ को सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि आप खर्चा एक साथ नहीं करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम आपको इंस्टॉलमेंट्स ऑफ़र करते हैं. इस तरीके से आप कम खर्चे में उस प्रोडक्ट की परचेज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस वजह से आई विल नॉट लूज़ माई कंज्यूमर. सो जब हम बात कर रहे हैं अवॉइडेंस को ख़त्म करने की, तो उसमें रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ आती हैं. रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ कंज्यूमर की तरफ से क्या हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्क कम करने के लिए इन्फॉर्मेशन सर्च ही कर सकते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेफ चॉइसेस. जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे उतना ही हम क्लियर हो जाते हैं अपनी परचेज़ के बारे में, और हमको कम डर लगता है किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में. इफ़ यू हैव इवैल्यूएटेड द प्रोडक्ट
as positive product, a brand as a positive brand through information search. But as far as the retailer or the manufacturer is concerned, इस रिस्क को कैसे रिड्यूस करती हैं वो कंपनियाँ कैसे रिड्यूस करती हैं? दे रिड्यूस इट बाय ऑफरिंग वारंटीज, दे ऑफर यू मनी बैक गारंटीज. एग्जाम्पल, आप कोई भी अप्लायंस बेचते हैं तो कस्टमर तो पूछता ही है कि ख़राब हो गया तो. सो ये एक रिस्क है जो हमारे अंदर माइंड में एक नेगेटिविटी है उस प्रोडक्ट की परचेज़ को लेते हुए. तो उसको कम करने के लिए रिटेलर क्या करेगा? आपको वारंटी ऑफ़र कर देता है कि ख़राब हुआ तो 1 साल 2 साल वारंटी पीरियड में है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको देंगे. सिमिलरली ट्रायल पीरियड्स जैसे कि आपको ट्राई करने के लिए हम दे रहे हैं 1 मंथ, यू ट्राई इट आउट, वट एवर बैड हैपन्स वो गारंटी हमारी है और आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा. या इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रायल सैशेज़ में, FMCGs में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, ये तरीके का ट्रायल का ऑप्शन बहुत चलता है. FMCG प्रोडक्ट्स में लाइक शैम्पू सैशेज़ हैं, ऑयल सैशेज़ हैं, क्रीम सैशेज़ हैं, बिकॉज कस्टमर डजंट वांट टू spend money on a shampoo which he may not use later because he didn't like it. और इस परचेज को कराने के लिए, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रायल ऑफर्स दिए जाते हैं. सिमिलरली मनी बैक गारंटी, आप एड्स देखते होंगे कि ये फेयर एंड लवली, ईदर फाइंड द रिजल्ट्स और यूल गेट द मनी बैक. तो ये काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कंज्यूमर्स के लिए रिटेलर्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम मूव टूवर्ड्स द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट. परचेज ऑफ द प्रोडक्ट में केवल मोटिवेशन ही ज़रूरी नहीं है. मोटिवेशन वॉज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट अलॉन्ग विद इट अगर बिहेवियर क्रिएट करना है तो यू ऑल्सो वॉन्ट 2 अदर कॉम्पोनेंट्स विच आर एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. टुगेदर जब ये साथ आते हैं तब बिहेवियर या परचेज देखने को मिलती है. एबिलिटी से हमारा क्या मतलब है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, एज, रिसोर्सेज एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी. नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. एबिलिटी का मतलब है आप परचेज तब कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो. इंटेलिजेंस, सी आई विल टेक देम थ्रू एन एग्जाम्पल. इफ आई वॉन्ट टू सेल अ म्यूचुअल फंड, who will be the able customer to me? Will it be a child or will it be the father of the child? The answer is simple, it will be the father of the child. Why? Because he has the knowledge about the product, he is intelligent enough, he has the proper education to analyze the pros and cons of the purchase of the product, he has the age which is suitable for the kind of purchase. Resources, he has the money. The kid doesn't have the money, the kid doesn't have the age, the kid doesn't have the education, the kid doesn't have the knowledge about the product, right? And cognition means he must have learned it through the past experiences, the customer, and therefore he will behave in that style, right? So what is it? Ability is required in order to make the purchases. This next point is the opportunity. The component is opportunity. Opportunity means the time. Lack of opportunity is also a major obstacle. Time, amount of information, complexity and repetition. आपके पास opportunity है right time की. For example, you want to purchase a product and offers are there. That is the right time to avail that opportunity and make the purchase. Opportunity आपके पास तब होगी जब आपके पास वो amount of information होगी. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएंगे. एंड रेपिटिशंस मीन if you pay attention to TV commercials, you will of course get the information, you will be able to make the decision process as less complex. And repetition means the time and again you are exposed to same information, it will be an opportunity to you to avail and go for a purchase. Exposure, attention and perception, these are again 3 very important components which help in creating this behavior
and also helps in creating the motive, right? एज आई सेड इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब आपको उस इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर होगा, अटेंशन आपने उसकी तरफ दी होगी और आपने उसको प्लस या माइनस तरीके से परसीव किया होगा. एक्सपोजर एज यू see, you get it through different promotion campaigns, you get them through different advertisements, or as you see the example of a billboard. Attention, customer अगर प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है उसकी तरफ अटेंटिव ही नहीं होता है तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन करना पॉसिबल नहीं है. तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द कस्टमर शुड बी अटेंटिव. एंड परसेप्शन, अटेंटिव कस्टमर कैसे होगा? अटेंटिव होगा बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, बाय क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग. अगर कुछ नया नहीं है ऐड में तो हो सकता है कस्टमर में नॉट पे अटेंशन. एंड परसेप्शन, if he sees your ad, if he goes through the ad, he will perceive it, he will try and extract the information out of it and will perceive the way he wants to, right? जितना वो उस मैसेज में से अपने अंदर लेना चाहता है, अपने दिमाग में रिकॉर्ड करना चाहता है, वो रिकॉर्ड करेगा और अकॉर्डिंगली अपना परसेप्शन डेवलप करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और द ब्रांड. नाउ यू कैन गेन एक्सपोजर. एग्जाम्पल इसमें जैसे कंप्यूटर स्क्रीन सेवर्स का दिया है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस का दिया है. एक्सपोजर के लिए आपके पास एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस तो ऑफकोर्स एक टूल है. कंप्यूटर स्क्रीन सेवर्स आज की तारीख में हम देखते हैं कि जब हम अपना जीमेल या कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो गूगल एडसेंस के चलते आपने जिन भी प्रोडक्ट्स पे कभी सर्फिंग के दौरान सर्च किया होता है तो उनके एड्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाते हैं. ये एक तरीके का आपको एक्सपोजर देने का ही माध्यम है. यू कैन गो थ्रू द एड्स इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू विल बी एक्सपोज टू द इंफॉर्मेशन विच द मार्केटर वॉन्ट्स यू टू बी एक्सपोज टू. Point of purchase displays, again at the point of purchase means wherever you are making the purchase, behind the counter you find different products जो हो सकता है impulse buying में help करते हैं या information gathering के लिए बहुत suitable होते हैं. आप पेमेंट कर रहे हैं, उस दौरान आप you are taking a view of the shop, you are taking the view of the counters and you find some product that is really interesting, you ask for that product and you gain information about that product, and if you find it suitable you may also go for purchase. Exposure can be increased through repetition and your wide presence. जितनी ज़्यादा बार आपको वही ad या इन्फॉर्मेशन दिखती है उतना ही ज़्यादा आप एक्सपोजर उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में गेन करते हैं. Now what are the various determinants? एक्सपोजर के बाद अगर हम अटेंशन की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर की अटेंशन को गवर्न करेंगे टूवर्ड्स अ स्टिमुलस. 4 kind of factors are there which really affect the kind of attention which a consumer gives to a stimuli, and they are self-relevance, pleasantness, surprisingness, and ease of processing. Self-relevance, which reflects the needs and values and goals of the consumer. मेरे लिए कौन सा एड रिलेवेंट होगा? ऑफ कोर्स मेरे लिए वो एड रिलेवेंट होगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरी नीड्स, मेरी वांट्स या मेरे गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है. तो वो मेरे सेल्फ के लिए रेलेवेंट है एंड दिस इज़ हाउ इट विल क्रिएट अ सेल्फ रेलेवेंस इफेक्ट एंड आई विल बी मोर अटेंटिव टूवर्ड्स दैट एड. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ प्लेजेंटनेस ऑफ स्टिमुलाई, विच मीन्स दैट attractive visuals का use, music का use, humor का use, different kind of appeals that are being used should be pleasant to me. If they are pleasant to me, I'll certainly be looking at the ads, I'll certainly be looking at the information. Surprisingness of stimuli, something new, that is novelty, and some unexpected offers if they come in front of my eyes in the ads. It will certainly surprise me and I may be attracted towards it and I may go for the purchase behavior. And ease of processing is when you say that जो information आपको दी जा रही है through the way of an advertisement or through the way of billboards or through the way of pamphlets should be concrete, it should be easily processable, means
कोई ऑफर आपके लिए क्रिएट किया है बट यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट बिकॉज इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, सो इट बिकम्स लाइक ओके फाइन डन, आई एम नॉट गोइंग फॉर इट. The behavior tends to get negative. So whatever you are informing me in order to make me attentive or in order to gain my attention, it should be easily processable, and that makes it easy for me to understand, and I may show my positive behavior towards it. With this, I come to the end of this presentation on motivation. I hope the contents that have been covered by me are of use to everybody. I hope you'd like the presentation. Thank you so much. Thank you.